ہمیں بچپن سے ایک ہی فارمولہ سکھایا جاتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری کرو اور زندگی بن جائے گی۔ لیکن اگر یہی فارمولہ ہر کسی کو امیر نہیں بناتا تو پھر اصل فارمولہ کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی، جس کے آتھر ہیں رابرٹ کیوساکی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں کروڑوں لوگ پڑھ چکے ہیں، ملٹیپل لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور آج بھی تقریباً ہر سکسیسفل انٹرپرینیور یا انویسٹر اس کتاب کو پڑھنے کی سفارش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے؟ یہ کتاب صرف یہ نہیں سکھاتی کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، یہ آپ کی منی مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر یا آفیسر تو بنا دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ پیسے کو کیسے مینیج کیا جائے، پیسے کو کیسے بڑھایا جائے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پیسے کو اپنے لیے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پوری کتاب کے 9 امپورٹنٹ لیسن آسان لینگویج میں سمجھاؤں گی، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے تب بھی آپ اپنی فائنینشیل جرنی کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں 2 مختلف مائنڈ سیٹ رکھنے والے ڈیڈز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تھے پور ڈیڈ، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ، اچھی سرکاری نوکری، سوسائٹی میں رسپیکٹ، لیکن مالی طور پر ہمیشہ مشکلات کا شکار۔ دوسرے تھے رچ ڈیڈ، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ تو نہیں تھے مگر کاروبار اور پیسے کی سمجھ رکھتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بہت کامیاب ہو گئے۔ آتھر کہتے ہیں کہ دونوں ڈیڈ ذہین تھے، دونوں ہارڈ ورکنگ تھے، لیکن ان کی منی مائنڈ سیٹ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ پور ڈیڈ کہتے تھے اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری کرو اور محفوظ زندگی گزارو، جبکہ رچ ڈیڈ کہتے تھے صرف نوکری کافی نہیں، فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرو، کیونکہ اگر تم پیسے کو نہیں سمجھو گے تو ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ پور ڈیڈ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق منی از دا روٹ کاز آف آل دا ایولز، جبکہ رچ ڈیڈ کہتے تھے اصل پرابلم پیسے کی کمی ہے، کیونکہ یہی کمی انسان کو مشکلات، دباؤ اور غلط فیصلوں کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس کتاب کا لیسن 1 ہمیں یہ سکھاتا ہے، دا رچ ڈونٹ ورک فار منی۔ یہ اس کتاب کا سب سے اہم سبق ہے۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں کیونکہ بلز ادا کرنے ہیں، نوکری کرتے ہیں کیونکہ گھر کا خرچ چلانا ہے، اوور ٹائم کرتے ہیں کیونکہ قرض کی قسط دینی ہے، یعنی ان کی زندگی کا ہر فیصلہ فیئر سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر مہینے کے آخر میں جب سیلری آتی ہے تو ایک دوسرا جذبہ جاگتا ہے جسے وہ ڈیزائر کہتے ہیں۔ یہاں پر انسان سوچتا ہے نیا موبائل لے لیتا ہوں، گاڑی بدل لیتا ہوں، بڑا گھر لے لیتا ہوں، برانڈڈ کپڑے خرید لیتا ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ کی انکم بڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور انسان دوبارہ اپنی نیکسٹ سیلری کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ آتھر اس چکر کو ریٹ ریس کہتے ہیں، یعنی ایسا چکر جس میں انسان جتنا بھی دوڑے وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر لوگ مختلف کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ میں زیادہ پیسے کیسے کماؤں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں میں ایسا کیا کروں کہ میرا پیسہ میرے لیے کام کرے۔ فرض کریں 2 لوگوں کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں۔ پہلا شخص وہ سارے پیسے ایک مہنگا موبائل خریدنے پر خرچ کر دیتا ہے۔ 6 ماہ بعد اس موبائل کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کوئی انکم بھی نہیں کما رہا۔ دوسرا شخص انہی پیسوں میں سے ایک سکل سیکھتا ہے، مثلا ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ چند مہینوں بعد وہ اسی سکل سے ہر مہینے انکم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن ایک نے لائبلٹی خریدی جبکہ دوسرے نے ایسا ایسٹ بنایا جو مسلسل آمدنی دے رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کے پاس ایک قیمتی چیز موجود ہے، آپ کی سکل۔ اگر آپ اچھی ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کینوا استعمال کرنا جانتے ہیں یا AI ٹول سیکھ لیتے ہیں تو یہی آپ کا پہلا ایسٹ بن سکتا ہے۔ اس لیسن کا اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے، صرف پیسے کمانے کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ ایسا سسٹم بنائیں جہاں وقت کے ساتھ آپ کے ایسٹس آپ کے لیے انکم پیدا کریں۔ اس کتاب کا لیسن نمبر 2 ہے وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف زیادہ پیسے کمانا کافی نہیں تو پھر اصل چیز کیا ہے؟
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मसला ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि मसला ये है कि आप पैसे को कितना समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में हमें मैथ, इंग्लिश, साइंस तो सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते। यानी हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, टैक्स क्या होता है, कर्ज कब लेना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है। और यही वो चीज़ है जो अमीर और गरीब के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करती है। एसेट क्या है? ऑथर कहते हैं कि तारीफ बहुत आसान है। एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डाले। मसलन आपने एक दुकान खरीदी और वो हर महीने आपको किराया दे रही है, ये एसेट है। आपने एक YouTube चैनल बनाया और वो हर महीने इनकम दे रहा है, ये भी एसेट है। आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, लोग खरीद रहे हैं और आप सो रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं, ये भी एसेट है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। मसलन आपने नई गाड़ी खरीदी, अब हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और इंस्टॉलमेंट सब आपके जेब से जा रहे हैं, ये लायबिलिटी है। अब यहाँ किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल बात आती है। ऑथर कहते हैं हर घर एसेट नहीं होता। ये सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। हमें हमेशा यही बताया गया है कि अपना घर जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर वो घर हर महीने आपसे प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्स, मेंटेनेंस और रिपेयर के नाम पर पैसे ले रहा है और आपको कोई इनकम नहीं दे रहा, तो कम से कम कैश फ्लो के हिसाब से वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर खरीदना गलत है, बल्कि ऑथर सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए एसेट ना समझें क्योंकि वो महंगी है। असल सवाल ये पूछें, क्या ये चीज़ मेरी जेब में पैसे डाल रही है या निकाल रही है। एक बहुत आसान एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज दो दोस्त हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला दोस्त पूरी रकम एक महंगी गाड़ी खरीदने पर लगा देता है। 5 साल बाद गाड़ी की कीमत भी कम हो चुकी है और इसी दौरान वो इस पर लाखों रुपए मजीद खर्च भी कर चुका। दूसरा दोस्त इन्हीं 10 लाख से एक छोटी दुकान खरीदता है और उसे किराए पर दे देता है। अब हर महीने उसके अकाउंट में किराया आ रहा है। दोनों ने पैसे खर्च किए, लेकिन एक ने लायबिलिटी खरीदी और दूसरे ने एसेट। आज के डिजिटल दौर में एसेट सिर्फ ज़मीन या दुकान नहीं होती। अगर आपने एक वेबसाइट बना ली, एक फेसबुक पेज मोनेटाइज कर लिया, एक यूट्यूब चैनल बना लिया या कोई डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तो ये भी आपके एसेट्स हैं। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग लैपटॉप से बैठकर दुनिया भर से इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपना एसेट कॉलम बनाया। इस लेसन का खुलासा, अगर आप वाकई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं बल्कि अपने एसेट्स बढ़ाने पर तवज्जो दें। इस किताब का लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। ये किताब का शायद सबसे मशहूर लेसन है, लेकिन यहाँ एक गलत फहमी दूर करना ज़रूरी है। जब ऑथर कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप नौकरी छोड़कर दुकान खोल लें, बल्कि वो कहते हैं अपनी जॉब ज़रूर करें लेकिन साथ साथ अपना एसेट भी बनाएं। यहाँ वो एक बहुत खूबसूरत डिफरेंस बताते हैं। एक होता है आपका प्रोफेशन और दूसरा होता है आपका बिजनेस। लेट्स सपोज आप टीचर हैं, ये आपका प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप अपनी टीचिंग से ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं या यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या अपनी बुक लिखते हैं, तो ये आपका बिजनेस बन गया। इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर हैं लेकिन साथ एक मेडिकल ऐप या ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, तो आप सिर्फ डॉक्टर नहीं रहे बल्कि आपने अपना एसेट भी बनाना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज आपके पास बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या करें? अपनी स्किल को बिजनेस बना दें। अगर आपको कैनवा आती है तो टेम्पलेट्स बेचें। अगर आपको लिखना आता है तो फ्रीलांसिंग करें। अगर आप अच्छी टीचिंग करते हैं तो ऑनलाइन कोर्स बनाएं। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो यूट्यूब शुरू करें। अगर आप AI इस्तेमाल करना सीख लें तो दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। आज सरमाया सिर्फ पैसा नहीं, स्किल भी सरमाया है। इस लेसन की समरी ये है कि अपनी जॉब सिर्फ बिल्स अदा करने के लिए करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी का असल मकसद अपना एसेट कॉलम बनाना होना चाहिए। क्योंकि जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।
लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने पर तवज्जो देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा दौलतमंद भी बन जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आप ज़्यादा कमाते हैं उतने ही ज़्यादा टैक्सेस और दूसरे अखराजात भी बढ़ सकते हैं। ऑथर यहाँ एक दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि वो रूल्स ऑफ मनी को समझते हैं। वो जानते हैं कि टैक्स कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे चलता है और कॉरपोरेशन का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुलाजिम पहले तनख्वाह कमाता है, फिर उसमें से टैक्स कटता है और जो रकम बचती है वो उसे खर्च करता है। लेकिन एक कारोबार में अक्सर जायज़ कारोबारी अखराजात पहले निकाले जाते हैं और फिर मुनाफे पर टैक्स का हिसाब होता है। इसलिए कारोबार चलाने वालों के पास बाज़ कानूनी सहूलतें होती हैं जो आम मुलाजिम के पास नहीं होती। यहाँ ऑथर का मकसद ये नहीं कि हर शख्स फ़ौरन कंपनी बना ले, बल्कि ये समझाना है कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि टैक्स और बिज़नेस कवानीन को समझने का नाम है। इसका असल जो लेसन है वो ये है कि अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे तो शायद अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी हासिल करेंगे तो आप ज़्यादा समझदार माली फ़ैसले कर सकेंगे। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। ये किताब का एक बहुत दिलचस्प लेसन है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग इन्हें देख ही नहीं पाते। डिफरेंस सिर्फ नज़र का नहीं, सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग हर मुश्किल में मसला देखते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग अपनी नौकरी खो देते हैं। पहला शख्स कहता है अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दूसरा शख्स सोचता है शायद यही वक्त है कि मैं अपनी स्किल से ऑनलाइन काम शुरू करूं। दोनों के हालात एक जैसे थे लेकिन सोच मुख्तलिफ थी, इसलिए नताइज भी मुख्तलिफ होंगे। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल IQ बहुत ज़रूरी है और वो इसके 4 हिस्से बताते हैं। अकाउंटिंग यानी पैसे का हिसाब समझना, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। अगर ये नहीं मालूम तो दौलत बनाना मुश्किल है। सेकंड, इन्वेस्टिंग, सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं, पैसे को ऐसी जगह लगाना सीखें जहां वो वक्त के साथ बढ़ सके। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, दुनिया को ऑब्जर्व करें, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी स्किल की डिमांड बढ़ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अहम होगी। जो शख्स मार्केट को समझ लेता है वो दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटी पहचान लेता है। एंड द 4th वन इज़ द लॉ, कानून की बुनियादी समझ भी ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट्स, टैक्सेस, बिजनेस रूल, ये सब चीज़ें बाद में बहुत फ़ायदा देती हैं। अब इस लेसन को आज के दौर से जोड़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं, तो क्या आप कभी अमीर नहीं बन सकते? ऑथर के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल है। आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, AI टूल सीख सकते हैं, यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, फेसबुक मोनेटाइजेशन हासिल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। शुरू में सरमाया नहीं, सिर्फ वक्त और सीखने की ख्वाहिश चाहिए। एक बहुत अहम बात, रॉबर्ट कियोसाकी ये नहीं कहते कि हर शख्स एक ही रास्ता इख्तियार करे। वो सिर्फ ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नज़र आती है जो अपने दिमाग को मसला हल करने की आदत डालते हैं। इस लेसन की समरी ये है, दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती बल्कि एक्शन, आइडियाज़ और नॉलेज से बनती है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बदल जाएंगी। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ ऐसी नौकरी मत ढूंढें जहां अच्छी सैलरी मिले, बल्कि ऐसी जगह काम करें जहां आप नई चीज़ें सीख सकें। वो अपने वालिद की मिसाल देते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी को सबसे अहम समझते थे। उनका ख्याल था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए फिर पूरी ज़िंदगी इसी से एफिलिएटेड रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रह जाएंगे। वो कहते थे कि हर ऐसी स्किल सीखो जो कल तुम्हें अपना बिजनेस चलाने में मदद दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सेल्स सीखें, अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर है तो उस पर काम करें, अगर लीडरशिप नहीं आती तो लीडरशिप सीखें। अगर आप सिर्फ एक ही काम जानते हैं तो आपकी तरक्की भी उसी काम तक महदूद रहेगी। आज के दौर में भी यही बात लागू होती है। फ़र्ज़ करें एक शख्स सिर्फ डेटा एंट्री करता है, दूसरा डेटा एंट्री के साथ साथ AI, वीडियो एडिटिंग, एक्सेल और डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेता है।
5 साल बाद दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि स्किल्स ही मुस्तकबिल की असल करेंसी हैं। इस लेसन का असल मैसेज सिर्फ जॉब मत करें, ऐसी जॉब करें जो आपको कल का एंटरप्रेन्योर बना सके। लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर दौलत बनाना इतना आसान है तो फिर हर शख्स अमीर क्यों नहीं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इसकी वजह पैसा नहीं बल्कि इंसान की अपनी सोच है। वो 5 बड़ी ऑब्स्टिकल्स का जिक्र करते हैं। पहली रुकावट है फियर। लोग डरते हैं, अगर नुकसान हो गया तो, अगर बिजनेस ना चला तो, अगर लोग हंसने लगे तो क्या होगा? राइटर कहते हैं, नाकामी से सिर्फ वो लोग डरते हैं जो कोशिश नहीं करते। कामयाब लोग भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन वो हर नुकसान से कुछ सीखकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। दूसरी रुकावट सिनिसिज्म। कुछ लोग हर नई चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। जब उन्हें यूट्यूब के बारे में बताया जाए, वो कहेंगे अब तो बहुत कंपटीशन है। फ्रीलांसिंग का जिक्र करें तो कहेंगे इसमें कामयाबी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। AI की बात करेंगे तो कहेंगे ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे लोग हर अपॉर्चुनिटी को शक की नज़र से देखते हैं, इसलिए अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट जो रुकावट है वो है लेजीनेस। ऑथर कहते हैं, हर सुस्ती बिस्तर पर लेटने वाली सुस्ती नहीं होती। बहुत से लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालते। वो सारा दिन दूसरों के ख्वाब पूरे करने में लगा देते हैं, लेकिन अपने ख्वाब के लिए वक्त नहीं निकालते। चौथी रुकावट है बैड हैबिट्स। यहाँ ऑथर एक बहुत मशहूर उसूल बताते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी तनख्वाह आते ही पहले अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम अलग करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स, फिर शॉपिंग, फिर अगर कुछ बच गया तो सेविंग। लेकिन अमीर लोग पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाकी अखराजात पूरा करते हैं। 5वीं रुकावट है एरोगेंस। ऑथर कहते हैं, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। इसकी समरी ये है कि अगर आपने अपने खौफ, सुस्ती, बुरी आदतों और गुरूर पर काबू पा लिया तो फाइनेंशियल सक्सेस का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। लेसन नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। अब सवाल ये है, अगर कोई शख्स आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या हो? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर एक मजबूत वजह पैदा करें। अपने आप से पूछें, मैं फाइनेंशियली फ्री क्यों बनना चाहता हूँ? अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, अपने वालिदैन की खिदमत, अपना वक्त आज़ाद करना या सिर्फ कर्ज़ों से निकलना? जब वजह मजबूत होती है तो इंसान मुश्किल रास्ता भी तय कर लेता है। फिर वो कहते हैं, जो चीज़ काम नहीं कर रही उसे बदलने से ना डरें। अगर आप 5 साल से एक ही तरीका आजमा रहे हैं तो नतीजा नहीं आ रहा, तो शायद तरीका बदलने का वक्त आ गया है। सीखने की आदत डालें, अच्छी किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारें और सबसे अहम एक्शन लें। सिर्फ मोटिवेशन से दौलत नहीं बनती। लास्ट एंड द फाइनल लेसन, लेसन नंबर 9, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। किताब के आखिर में रॉबर्ट कियोसाकी चंद अमली मशवरे देते हैं। वो कहते हैं, हर महीने कुछ नया सीखें, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपसे बेहतर हों, अपने पैसे का हिसाब रखें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और हर अपॉर्चुनिटी को खुले जहन से देखें। वो ये भी कहते हैं कि हर डील कामयाब नहीं होगी, हर डिसीजन दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर एक्सपीरियंस से सीखते रहेंगे तो वक्त के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। अगर मैं पूरी किताब को सिर्फ एक जुमले में समेटूं तो वो ये होगा, सिर्फ पैसा कमाना दौलत नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना दौलत है जहां आपके एसेट्स आपके लिए मुसलसल इनकम पैदा करें। अगर आप इस किताब से सिर्फ 3 बातें याद रख लें, अपनी स्किल्स में सरमायाकारी करें, एसेट्स बनाएं, सिर्फ चीज़ें ना खरीदें और पैसे के पीछे भागने के बजाय ऐसा निज़ाम बनाएं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे, तो यकीन करें आपकी माली सोच आज से बदलना शुरू हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है कि ये मालूमात किसी की फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम बन जाएं। शुक्रिया।